ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरमुख जनों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅਰਥ-ਬੋਧ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੋ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੋਈਏ ਮਹਿਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਸੋਈਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬੜ ਸੁਬਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਕ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਸਵਈਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਸਵਈਏ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬੜ ਸੁਪਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਅਤ ਬੜ ਸੁਪਰ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੈ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੈ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲ ਜੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਦਾ ਭਰਪੂਰਨ। ਨਿਰਮਲ ਮੈਨੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ,
पवित्र नाम मम्मी औंकड़ एक वचन पुलिंग शब्द होने करके प्रभु दा पवित्र नाम। सुधा सुधा आखदे ने अमृत नूं। जिहड़ा पवित्र नाम अमृत है मैंने आत्मक जीवन देने वाला है। परपूर्ण हथ लिखत बीड़ां दे विच पर दे रारे नूं स्यारी मिलदी है परिपूर्ण। और व्याकरणिक नियमां दे मुताबिक ये ठीक भी है, रारे नूं इत्थे स्यारी चाहिदी है जो कि प्रिंटेड बीड़ां विच उपलब्ध नहीं है। परपूर्ण भाव भरिया होया, पूरिया होया, नक्को नक भरिया होया। शब्द तरंग इत्थे शब्द दे दद्दे नूं औंकड़ नहीं आई। जदों भी पुलिंग नाउं दे आखिरी अखर नूं औंकड़ आवे ते एक वचन दे अर्थ हुंदे ने, ना आवे ते उहदे तीन अर्थ निकल सकदे ने। जां ते ओह बहुवचन होएगा, जां ओह संबोधन होएगा, जां ओहदे अगे कोई ना कोई प्रगट जां लुप्त संबंधक होएगा। इत्थे शब्द दे दद्दे नूं औंकड़ नहीं है, पर ना ते यह बहुवचन है ना यह संबोधन है। हे शब्द संबोधन भी नहीं, एड्रैस भी नहीं किया। तीजा लुप्त संबंधक इहदे विच है दियां। दियां संबंधक प्रपोजिशन करके दद्दे दी औंकड़ हट गई। तरंगा तरंग दे गगे नूं औंकड़ नहीं आई, यह बहुवचन शब्द है। तरंगा बहुतियां लहरां। शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर। हथ लिखत बीड़ां विच टैंके नूं स्यारी नहीं मिलती, प्रिंटेड बीड़ां विच इत्थे सानूं स्यारी नजर आ रही है। ते असली शुद्ध शब्द नियमां दे मुताबिक, व्याकरणिक नियमां मुताबिक प्रगटित बिल्कुल ठीक है, पर प्रिंटेड बीड़ां विच असीं टैंके नूं स्यारी देखदे हां। भाव रारे नूं स्यारी चाहीदी सी, टैंके नूं नहीं सी चाहीदी। परिपूर्ण दे रारे नूं स्यारी, प्रगट टैंका मुक्ता चाहीदा सी। प्रगटित दिन आगर, प्रगटित मैंने प्रगट होने वाला। दिन दिन इत्थे एक वचन पुलिंग नाउं ते है, पर दिन दे लुप्त संबंध काण करके मैंने नूं औंकड़ हट गई। आगर दिन दे आगर, आगर मैंने पहला, जिन्हों असीं अगर भी कहने आ, आगर भी कहने आ। और ये प्रीफिक्स लफ्ज हैगा, जां इदां कह लो भी ये लफ्ज जिहड़ा हैगा ये अगेतर हैगा। ते ये जिहड़ा शब्द है अगे वास्ते भी, अगर मुखी वास्ते भी ये लफ्ज आंदा हैगा। आम तौर ते पिछेतर के रूप च भी आंदा, जिवें रतन प्लस आगर, रतनागर। पर इत्थे ये अगर दा आगर दा भाव है अगे, मुखी, शुरुआत। ये बहुत सारे अर्थ ने, पर इत्थे आगर दा मतलब बनेगा पहला। दिन दे पहला, भाव दिन चढ़न तो पहला, प्रभात वेले। प्रगटित दिन आगर, दिन दे पहला, दिन दे शुरुआत तो पहला, भाव प्रभात वेले। हुण इहदे अर्थ किवें बनणगे जी? निर्मल नाम सुधा परपूਰਨ, प्रभु दा पवित्र नाम जिहड़ा आत्मक जिंदगी देने वाला अमृत है, परपूर्ण मैंने भरिया पिया है। वो कौन है? वो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी। वो सरोवर ने जिहड़े प्रभु दे नाम अमृत नाल भरे पए ने। शब्द तरंग, शब्द दीयां लहरां, प्रगटित दिन आगर। दिन तो पहला भाव प्रभात वेले शब्द दीयां लहरां उठदियां हन। उन्हां दे विचों भाव उठण तो लैके जदों सरीरक तौर ते सवेरे जागदे ने, उदों तो ही शब्द जिहड़ा है उन्हां दे अंदर लहरां नाल भरिया होया दुनिया नूं तारदा है, दुनिया नूं शांत दिंदा है। दुनिया नूं वो लहरां जिहड़ियां ने, शब्द दीयां तरंगां जिहड़ियां ने, दुनिया नूं सुखी ते शांत करदियां हन। इत्थे सरोवर गुरु रामदास पातशाह जी नूं किया है पट मथुरा जी ने। ते गुरु रामदास पातशाह वो सरोवर ने जिन्हां दे अंदर शब्द दीयां लहरां, प्रभु दे नाम दा अमृत भरिया होया है। ते उस नाम अमृत च लहरां अमृत वेले तो उड़दियां ने। निर्मल नाम सुधा परपूਰਨ, शब्द तरंग, प्रगटित दिन आगर। प्रभु दा पवित्र नाम आत्मक जीवन देने वाला अमृत जिहड़ा पूरा भरिया होया है सरोवर दे विच। शब्द तरंग, प्रगटित दिन आगर। दिन दे आरंभ तो पहला भाव प्रभात वेले तो ही उस सरोवर दे विचों अमृतमई लहरां शब्द दियां उठदियां हन।
गहर गंभीर अथा अत बड़ सुपर सदा सब विद रत्नागर। गुरु रामदास पातशाह वो सरोवर ने जिन्हां दे अंदरों शब्द दियां लहरां उड़दियां ने, भाव शब्द दियां लहरां जिहड़ियां ने वो दुनिया नूं सुखी ते शांत करदियां हन। सवेर तो ही गुरु रामदास पातशाह के मुख तो शब्द बाणी का प्रवाह चल पैंदा है। ते गुरु रामदास पातशाह वो सरोवर ने जिहड़े गहर गंभीर अथा अत बड़, जिहड़े गहर ने, गहर मैंने डूंगे ने, गंभीर गंभीर मैंने बड़े धीरज वाले शांत हन। ये दो गुण ऐसे ने जिहड़े गुर परमेश्वर दे विच हन। गहर ते गंभीर ये दो इन्ने कीमती गुण ने सानू आम इंसान विचों लभदे नहीं हन। गहर ते गंभीर होना बड़ा मुश्किल है। जिन्हें गुरु वर्गा होना है, जिन्हें रब वर्गा होना है, उन्होंने गहर ते गंभीर होना पएगा। प्रभु गहर है गंभीर है, गुरु गहर है गंभीर है। असी सोदर दी जो बाणी पढ़दे हां उहदे विच भी पढ़दे हां, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। उत्थे भी गहर ते गंभीर दा जिक्र हुंदा है। लगभग ये शब्द इकट्ठे ही आउंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, गहर ते गंभीर। इहदा मतलब की है? गुरु किवें गहर ते गंभीर है, प्रभु किवें गहर ते गंभीर है? गहर मैंने डूंगा, डीप। प्रभु इन्ना गहर है, 6 फुटे शरीर विच डूंगा उतर गया, इन्ना डूंगा उतर गया कि मनुख दी पकड़ तो परे हो गया, मनुख दी पहुंच तो परे हो गया। है 6 फुटे शरीर च प्रभु, पर इन्ना डूंगा उतर गया, इन्ना गहरा चला गया, मनुख दी पहुंच तो परे हो गया। प्रभु इन्ना गहर है, एक छोटी जी कीड़ी विच भी इन्ना डूंगा उतर गया कि कीड़ी विच भी पकड़ तो परे हो गया। गहर इन्ना है। एक छोटे जे बैक्टीरिया सैल जिहड़ा नंगी अख नाल नजर नहीं आउंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्ना डूंगा उतर गया कि पहुंच तो परे हो गया। इन्ना गहर है। सारियां दे विच डीप अंदर तो अंदर तक वो प्रभु समाया होया है। गहर ते गंभीर कितना कु है? गंभीर इन्ना है कि 5 आदमी खड़े होण, 4 आदमी आपस च गल्लां बातां करदे होण ते पंजवां चुप नहीं रह सकदा। वो कोई ना कोई गल करके विच दखल अंदाजी कर ही दिंदा है, वो कोई ना कोई गल कह के इंटरप्ट कर ही दिंदा है, इंटरफेरेंस अपनी दिखाई दिंदा है। 5 आदमी खड़े होण, 4 गल्लां करदे होण, पंजवां चुप नहीं रहिंदा, वो कुछ ना कुछ बोल दिंदा है। पर प्रभु इन्ना गंभीर है, वो सारियां दे अंदर बैठा होया है, साडियां गल्लां सुनदा भी है, सानू देखदा भी है, सानू सद सुनदा, सद वेखदा, सानू वेख भी रहा है, साडियां हरकतां भी देख रहा है, साडियां गल्लां भी नोट कर रहा है, सुन रहा है। पर गंभीर इन्ना है, वो साडे कर्मां दे विच, साडे बोलां दे विच अपनी दखल अंदाजी नहीं कदी करदा। उन्हें कर्मा पक्षों सानू स्वतंत्र रखिया है, बिल्कुल स्वतंत्र, कि कर्मी आपो अपनी, कर्म हरक दे अपने ने। उन्हां कर्मां विच प्रभु दखल अंदाजी नहीं दिंदा। इन्ना गंभीर है, साडियां गल्लां सुनदा है, साडे कम्मां नू देखदा है, हरकतां नू नोट करदा है, पर गंभीर बन के सिर्फ देख रहा है। वो साडे कर्मां दे विच, साडे बोल चाल दे विच दखल अंदाजी नहीं करदा। गंभीर इन्ना हो। प्रभु गहर भी है, गंभीर भी है, हर जीव दे अंदर गहरा उतर गया, समा गया। गंभीर इन्ना उन्हें हर मनुख नूं उहदे कर्मां पक्षों स्वतंत्र रखे है, वो कर्मां विच दखल अंदाजी नहीं करदा। अथा अथा मैंने जिहदी था ना पाई जा सके, जिहदी डूंगाई दा अंदाजा ना लाया जा सके, जिहदी हाथ ना पै सके, जिहदा परला बन्ना नजर ना आवे। अत बड़ अंतां दा वड्डा सुपर, इनू कई सुबर भी पाठ कर लेंदे ने, वो भी ठीक है, पर सुपर जिहड़ा है वो ज्यादा वधिया है सुबर नालों सुपर, क्योंकि सू इत्थे प्रीफिक्स हैगा, अगेतर है सू, पर मैंने पूरा भरिया होया, नक्को नक भरिया होया। सुपर इस सरोवर का विशेषण होने करके रारा औंकड़ सहता है, क्योंकि एक सरोवर की गल चल रही है। गुरु रामदास पातशाह एक सरोवर हैं, उन्होंने अंदर प्रभु का एक नाम रूपी अमृत भरिया होया है। उसका विशेषण है भी वो सरोवर सुपर है।
ਭਾਵ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ। ਸਭ ਬਿਦ, ਬਿਦ ਮੈਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਬਿਦ ਮੈਨੇ ਵਿਧੀ, ਵਿਧੀ ਤੱਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦ ਕੋ ਛੋਟੀ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਆਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਬਿਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਤੱਦੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਐਸੇ ਨਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਦਭਵ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਣ, ਦੁਹਾਗਣ, ਪਰਦੇਸ਼ਨ, ਮਾਲਨ, ਸੰਪਨ, ਸੌਂਕਣ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਿੱਧ, ਸਿੱਧ, ਨਿੱਧ, ਬਿੱਧ। ਹੁਣ ਬਿੱਧ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਜੇ ਬਿੱਧ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਅਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸਭ, ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਦੇ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਿਆਰੀ ਨਾ ਔਂਕੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਭ ਬਿੱਧ, ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ। ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਪੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਆਣਾ ਸੀ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਭ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਵਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਭ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਭ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਭ ਪੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਪੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ, ਸਭ ਸਦਾ, ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ, ਭਾਵ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਤਨਾਗਰ, ਰਤਨ ਪਲੱਸ ਆਗਰ। ਇੱਥੇ ਆਕਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਗਰ। ਆਕਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ, ਜਿਸ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਣਿਜ, ਅਬਰਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੋਇਲਾ। ਇੱਥੇ ਰਤਨ ਪਲੱਸ ਆਕਰ ਮੈਨੇ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਰਤਨਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਤਨਾਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਬਿਦ ਰਤਨਾਗਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹ ਹੋਵਾ ਸਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਭਾਗਟ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਜਾਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਝੌਂਪੜ ਪੱਟੀਆਂ, ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ
80-80, 100-100 साल की उम्र गुजार के दुनिया तो चले जाते हैं, गरीबी च जमते हैं, गरीबी च जींदे ने, गरीबी च मर जाते हैं। पर दूरों कोई दूरों एक मरजीवड़ा आउंदा है समुद्र के किनारे। वो मरजीवड़ा की करता है, सागर में चुब्भी मार के कीमती हीरे मोती खजाने कढ़ के लै जाता है, रातों रात अमीर हो जाता है। गुरु शब्द गुरबाणी वो सरोवर है, वो रत्नां दा समुंदर है। कई बारी साडे वर्गे लोग सारी जिंदगी गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़े हुए बैठे आत्मिक तौर ते गरीबी कंगाली च जीवन गुजार जाते हैं। ना जिंदगी सत संतोख हुंदा है, ना दया धर्म धीरज हुंदा है, ना ज्ञान विराग हुंदा है, ना निमरता निर्माणता हुंदी है, ना नेक नीति ईमानदारी हुंदी है, कोई गुण नहीं हुंदा। आत्मिक तौर ते गरीबी विच ही पैदा होए, गरीबी च वड्डे होए, गरीबी च मर मुक गए। गुरु सरोवर दे कोल रह के भी कई वार असीं खाली रह जाने आ। कदी कदी कोई मरजीवड़ा आउंदा है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी शब्द इस सरोवर विच शब्द दे समुंदर विच डूंगी चुब्भी मारदा है ते चुब्भी मार के कीमती हीरे मोती खजाने लैके घर तुर जांदा है, आत्मिक तौर ते अमीर हो जांदा है। गुरबाणी वो सागर है हीरिया मोतियां खजानियां दा, जिस सागर दे किनारे रहन वाले कई बारी झोंपड़ियां च जिंदगी गुजार जांदे ने। कोई विरला आउंदा है जिहड़ा इहदे विचों कीमती खजाने भर के अपने जीवन नूं अमीर कर लैंदा है। सतगुरु पातशाह ने ते बाणी च इस तरह दी बहुत सारियां उदाहरणां दित्तियां ने कि देख डड्डू, सरोवर दे विचकार कमल दा फुल खिड़िया है, तू उस कमल दी जड़ां च बैठ के गंदगी ते काई खांदा रहा, भंवरा दूरों आके उस कमल की सुगंधी लैके चला गया। दादर तू कवै ना जानस रे, पखस सिवाल बसस निर्मल जल, अमृत ना लखस रे। गुरु ते कीमती हीरिया मोतियां दा खजानियां दा सागर है, समुंदर है, गहर गंभीर अथा अत बड़ सुपर सदा सब विद रत्नागर। सारियां तरीकियां दे रत्नां नाल भरिया होया गुरु सरोवर है। कई सरोवर के किनारे बैठे बैठे भी उस खजाने का लाभ नहीं लै पाते, कोई विरले दूरों आके उस गुरु शब्द सरोवर दे विचों खजाने भर के घर तुर पैंदे ने। इस करके गुरबाणी ने कहा खोजी उपजै बाधी बिनस है। खोजी जिहड़ा है ना, जिहड़ा सचमुच खोज करदा है, उन्हें मरजीवड़ा बनना पैंदा है। मरजीवड़ा शब्द इस करके वरत्या जाता है जिहड़ा डूंगी चुब्भी समुद्र विच मारदा है, डूंगा साह भर के, ते उहदा पता नहीं हुंदा उन्हें वापस आना कि नहीं आना। वो मौत नूं तली ते रख के, इदां कह लो सिर तली ते टिका के चुब्भी मारदा है। फिर जदों किते खजाने हीरे मोती कढ़ के बाहर आ जांदा है, उहनूं कहंदे ने मरजीवड़ा है, ये मर के दोबारा जींदा होया। जिन्हों गुरबाणी ने भी किया, हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया, जीवन मुक्त सो आखी है मर जीवे मरिया। जिहड़ा मर के जींदा हुंदा है मरजीवड़ा, जिहड़ा शब्द विच मर के, शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण ना होई। जिहड़ा शब्द विच मर के कीमती ज्ञान दे भंडारे खजाने लैके बाहर आउंदा है, वो फिर मरजीवड़ा हो जांदा है। गुरु वो रत्नां दी खान है जिहड़ा रत्नां नाल भरिया पिया है। संत मराल करें कंतूहल। संत इत्थे संत दे तत्ते नूं औंकड़ नहीं है, भाव संत बहुवचन शब्द है। मराल, मराल दा मतलब हुंदा है राजहंस। हंस नूं मराल किया जाता है। संस्कृत रूट दा यह शब्द है जिहदे विच बहुत सारे अर्थ हैगे ने। मराल दा अर्थ जिहड़ा है राजहंस भी हुंदा है, और इहदा अर्थ बदल भी हुंदा है, हाथी भी हुंदा है, घोड़ा भी हुंदा है। अनारां दे जंगल नूं भी मराल कहंदे ने, जिहड़ा अक्खां च सुरमा पाया जाता है उहनूं भी मराल कहंदे ने। दुष्ट आदमी नूं भी मराल कहंदे ने, एक बिल्कुल नरम चिकने नूं भी मराल कहंदे ने। इहदे बहुत सारे अर्थ ने, पर संस्कृत रूट दा यह शब्द मराल मुख तौर ते हंस वास्ते वरतिया जाता है। संत मराल, संत जन जिहड़े ने वो हंस ने इस गुरु सरोवर के किनारे ते। करें कंतूहल, करें जिहड़ा है वो बहुवचन होने करके रारे नूं दलावां नहीं आईयां, क्रिया के अखीर ते हाहे नूं सिहारी आ गई। करें बहुवचनी अर्थ बनणगे, करदे हन। संत बहुते ने, तत्ता मुक्ता आ गया। संतां दा विशेषण है मराल, वो हंस ने, ते जे पुलिंग बहुवचन है ते उहदा विशेषण भी बहुवचन होएगा। मराल दे भी लले नौकड़ नहीं आई। संत मराल मैंने संत जन जिहड़े हंस हन,
करें कंतूहल, वो बहुते ने, इस करके क्रिया भी बहुवचनी आ गई करें। जे एक वचन हुंदा फिर कक्का रारे दलावां आणियां सी करे, इत्थे कक्का रारा हायुन सियारी करें बहुवचन, इनू करे पाठ करना गलत है। करें कवांगे नासकी उच्चारण होएगा, सुनने वाले को भी पता चलेगा भी बहुवचन की गल हो रही है, अर्थ भी स्पष्ट हो जाएंगे। कंतूहल, कंतूहल मैंने कलोला करते हैं, कंतूहल भी बहुवचन है क्योंकि संत बहुते ने, हंस बहुते ने, इस करके कलोला भी बहुते कर रहे हैं। करें भी बहुवचनी है, करें कंतूहल मैंने कलोला कर रहे हैं संत जन, हंस जिहड़े ने उस गुरु सरोवर के किनारे ते चोज कर रहे हैं, खेड़ा कर रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। इसे करके गुरसिख नूं हंस किया गया बाणी विच। जिवें हंस मानसरोवर के किनारे ही पैदा हुंदा है, उत्थे ही वड्डा हुंदा है, उत्थे ही वो मरदा है, उतों वख नहीं मन्निया जांदा। इदां ही जिहड़ा भगत है, गुरमुख है, वो गुरु के चरनां च जन्म लैंदा है। सतगुरु का जन्म है गवन मिटाया, जो गुरु सरोवर के किनारे उहदा हंस रूप च जन्म हुंदा है, उहदे आवागमन मुक जांदे ने, उत्थे अपनी जिंदगी गुजार दिंदा है। सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै एवै भाणा। हुण क्यों सरोवर के किनारे रहिंदा है? क्योंकि सरोवर तो दूर जाए तो उहनूं उहदा भोजन नहीं मिलता। हंस का भोजन है हीरे मोती, ते वो मानसरोवर के किनारे ने, इस करके मानसरोवर के किनारे वो जिंदगी बतीत कर दिंदा है। सरवर हंस तुरै ही मेला, खसमै एवै भाणा, सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना। इत्थे मैं एक गल होर स्पष्ट कर दियां, गुरबाणी ने बहुत सारे पुराणिक शब्द वरते ने। पुराणिक शब्द मैंने जिहड़ियां वेदां पुराणां दीयां कहानियां दे विच मिथ्यासिक चीज़ां ने, उन्हां नूं सतगुरु पातशाह ने वरतिया, वरत के परिभाषा अपनी दे दित्ती। भाव ये चीज़ां दुनिया में होंद नहीं रखदियां, एग्जिस्ट नहीं करदियां। हंस इस धरती ते कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है हंस। हंस जिहड़ा वो देवी देवतियां दे पुराणिक कथावां दा एक पंछी है, जिहड़ा स्वर्ग दा पंछी मन्निया गया। अज असीं कह दिंदे भी भारत दे विच मानसरोवर है, हिमालय तो थल्ले नूं जिहड़े झरने फुटदे ने, मानसरोवर है, उत्थे जी हंस रहिंदे ने ते हंस मोती चुगदे ने। जे इदां होवे ते जिहो जी साडी मानसिकता है भारती लोकां दी, उत्थे सारे हंसां नूं मार के सारे उत्थों हीरे मोती चुग लैण, पर उत्थे कोई मोती नहीं निकलते। मोती निकलते हुण हज़ारां लोग उत्थे डेरे पाई बैठे होण, हंसां नूं मार मार के उन्हां दे पेट विचों मोती कढ लैण। पुराणिक कथावां दा एक पात्र पंछी है हंस, जिहदे बारे कहा जाता है मोती खांदा है। मोती एक हार्ड चीज है, कार्बन एक है हार्ड, जिन्हों खाधा नहीं जा सकता, पचाया नहीं जा सकता। एक गल याद रखियो, गुरबाणी का एक बड़ा कीमती सिद्धांत है, वो की है, असी रेता नहीं खा सकते, असी इट्टा नहीं खा सकते, असी पत्थर नहीं खा सकते, असी लोहा सोना नहीं खा सकते, असी कच नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि चीज़ां निर्जीव ने, इन्हां च जीवन नहीं है। असी सिर्फ वो चीज खा सकते हैं जिहदे विच जीवन है, क्योंकि जीवन ने जीवन विचों अपना जीवन लैके अपना जीवन बनाना है। जिहड़ी जीव चीज पहले ही निर्जीव है, उहदे विचों जीवन नहीं लिया जा सकता। असी आलू खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, कणक खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, क्यों? इन्हां विच जीवन है। जेते दाने अन्न के जियां बाज ना कोई, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई। इन्हां च जीवन है। जीवन ने जीवन विचों जीवन लेना है। जिहड़ा पहले ही निर्जीव है चीज, वो सानू जीवन नहीं दे सकती। मोती निर्जीव चीज है, मोती च जीवन नहीं हुंदा, वो निर्जीव चीज है, ते निर्जीव चीज नूं खा के जीवन नहीं मिल सकता। हंस जी नहीं सकता। ते गुरबाणी ने बड़ा वधिया कंसैप्ट दिता कि जियां का आहार जी, खाना ए करे। जीव ने जीवन दे विचों अपना जीवन लैके जाना है। जीव दा आहार ही जीव है, चाहे वह किसी भी खाने का है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, तेरे कीते जनता। उत्पुज मैंने बनस्पति भी तेरे जंत ने, ये भी तेरे जीव ने। जे असीं आलू गोभी भी खाने, इन्हां विच भी जीवन है। आलू नूं तुसीं गिले कपड़े नाल ढक के रख दिओ, पुंगर आणगे, वो जीवना चाहते हैं, बदना चाहते हैं। मोती विच जीवन नहीं है।
ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਸਵੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਵੈਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੈਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੋ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੋਕੋ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆ ਲੋਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੇ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੰਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਵੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਐਵੇਂ ਪਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਮਰਾਲ, ਸੰਤ ਜਨ ਹੰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੰਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਗਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੁਖ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੰਸੀ ਪਰਮਹੰਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਮਹੰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ, 3 ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਠਿਓ ਦੁੱਖ ਕਾਗਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁੱਖ ਕਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਮ ਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 3 ਇੱਥੇ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। 3 ਦੇ ਜਮ ਤਰਾਸ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿਟਿਓ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਖਖਾ ਮੁਕਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਗਰ ਮੈਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਟ ਗਏ, ਫਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਫਟ ਗਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕਉ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਤ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਦੁਰਤ ਮੈਨੇ ਪਾਪ, ਦੁਰਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਵੇ ਕੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੁਪ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਤ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਆ ਗਏ, ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ। ਸਾਗਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰਬੇ ਕੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਤਰਾਸ, ਦੁੱਖ ਕਾਗਰ ਤੇ ਦੁਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਬਿਆਸ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੇਵ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਮੇਲ ਲਏ ਦੁਖਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ। ਜਾਕੋ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ, ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ। ਧਰੈ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯੁਗ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਯੁਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸਗਲ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਯੁਗ ਸਾਰਿਆਂ ਯੁਗਾਂ ਚੋਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ, ਕਬੂ ਕਉ ਪਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ, ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵੇ ਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਇਨ ਸਿਆਰੀ ਦੀ ਪਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਵਚਨੇ ਅਰਥ ਬਣਨੇ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਨੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਕੋ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਵਿਰਲਾ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਯੁਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਯੁਗ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਕੋ ਕਉ ਪਾਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ। ਆਤਮ, ਆਤਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਉ, ਕਉ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਔਂਕੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ। ਵੇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਕੋ,
जिस प्रभु दा जस बिरंच भी गाउंदा है। बिरंच विशेषण है ब्रह्मा दा, असी पिछले हफ्ते इहदे बारे विचार कर चुके हाँ। बिरंच मैंने रचन वाला, जिन्हों संसार दा रचैता मन्निया गया, इस करके ये विशेषण ब्रह्मा दे नाल पक्का लग गया, उन्होंने बिरंच किया जान लग पिया। रचन वाला ब्रह्मा जस गावे जाको, जिस प्रभु दा वो जस गाउंदा है। जस एक वचन पुलिंग सस्सी नूं औंकड़ नाल आ गया, गावे फिर एक वचनी क्रिया बन गई, गावे मैंने गाउंदा है, जाको मैंने जिस प्रभु नूं ब्रह्मा भी वेदांत समेत बाणी पढ़ के गाउंदा है। शिव मुन कह न तजात कबिलास को, शिव मुन गए, शिव जिहड़ा मुनि है, इत्थे शिव मैंने शिव की गल चल रही है। ना तजात, गह मैंने फड़ी बैठे, उस प्रभु की सिफत गाउंदा है। ना तजात जिहड़ा छड़दा नहीं है, तजदा नहीं है। कबिलास को, इत्थे कबिलास का अर्थ है कैलाश पर्वत। वो शिव जिहड़ा कैलाश पर्वत छड़दा नहीं है, वो भी समाधि ला के प्रभु नूं गाउंदा है। जाको जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप, जाको मैंने जिस प्रभु की खातर, जिस रब के दर्शनों की खातर, इत्थे सारे बहुवचन आ गए, जोगी जति सिद्ध साधिक। अनेका जोगी अनेका जति, सिद्ध ते तदे नूं औंकड़ नहीं, मैंने अनेका सिद्ध जिहड़े पुग चुके ने, साधिक कक्का मुक्ता आ गया, मैंने अनेका ही साधक जिहड़े अजे साधना कर रहे ने, अनेक तप जिहड़े अनेका ही तप कर रहे हैं। जटा जूट पेख कीए, कईयां ने अपने केसां दे विच बोड़ आदक दा दुध लगा के जटावां बना लईआं, जटावां रख के सिर दे उपर उदास पेख धारण कर लिया। फिर तो उदास को, उदास पेख दी धार के वो भटकदे फिरदे हन, भाव रब नूं पाण दी कोशिश कर रहे हैं। सो तिन सतगुर, सो मैंने वो हरि रूप गुरु रामदास पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह जी ने की कीता, गुरु अमरदास पातशाह जी ते किरपा की। सो तिन सतगुर, भाव वो सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने, रारे नवागी सिहारी गुर दे, भाव सतगुरु ने, तिन मैंने, सो तिन मैंने उस सतगुरु पातशाह ने। नन्ने नूं सिहारी आ गई तिन दे, इहदा मतलब एक वचन दे रूप च अर्थ होणगे। सतगुरु दे रारे नूं सिहारी आ गई, अगे लग गया ने, भाव उस सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने सुख पाए कृपा धारी जी। सुख पाए मैंने सुभावक प्रेम दे विच ही, कृपा धारी कृपा कर दित्ती जी, जीवां दे उपर, ते बहुते जीवां दी गल है। सुख पाए कृपा धारी जी, नाम की वड़ाई दई। उस सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने नाम की वड़ाई दे दी। नाम दे मम्मे दी औंकड़ तां उड़ गई क्योंकि अगे की संबंधक आ गया। नाम की वड़ाई दई, नाम की वड़ाई बख्श दी किनू? गुरु रामदास को। रामदास ते सस्सी दी औंकड़ तां खत्म हो गई, अगे कहो संबंधक आ गया, ते नाल उन्हां दा विशेषण गुर भी औंकड़ तो बिना आ गया। गुरु रामदास पातशाह जी नूं, भाव उस रब रूप गुरु अमरदास पातशाह जी ने, जिन्हां ने सुभावक ही जीवां ते कृपा की, उन्हां ने गुरु रामदास पातशाह नूं प्रभु दे नाम दी वड़ाई बख्श दी। भाव गुरु अमरदास पातशाह ने कृपा की, गुरु रामदास पातशाह के उपर उन्होंने वड़ाई बख्शिश कर दी, क्योंकि गुरु रामदास पातशाह गुरु अमरदास पातशाह के चरणों च समर्पित हो गए सन। इस करके गुरु अमरदास पातशाह जी ने वड़ाई प्रभु के नाम की बख्शिश उन्होंने उपर कर दी। नाम निधान ध्यान अंतर्गत, नाम दे मम्मी नूं औंकड़, निधान दे नन्ने नूं औंकड़। नाम जिहड़ा वो खजाना है, नाम एक वचन पुलिंग प्रभु का नाम, अगों उन्हां दा विशेषण निधान भी औंकड़ सहित आ गया। नाम निधान, नाम रूप खजाना। ध्यान अंतर्गत, गुरु रामदास पातशाह जी दे कोल नाम रूपी खजाना है। ध्यान अंतर्गत, अंदर वाल नूं उन्हां दा ध्यान है। हथ लिखत पीड़ां दे विच बहुत थाई ध्यान दे नन्ने नूं औंकड़ मिलती है, क्योंकि एक वचन पुलिंग शब्द है। प्रिंटेड बीड़ा में नन्ने तो इत्थे औंकड़ नहीं मिलती। उन्हां दे अंदर वाल ध्यान है, प्रभु दे नाल बिरती जुड़ी हुई है। ध्यान अंतर्गत तेज पुंज, पुंज मैंने प्रकाश, तेज पुंज भाव उन्हां दे तेज दा पुंज, पुंज मैंने सोमा, उन्हां दे तेज दा सोमा, उन्हां दे रोग दा सोमा। ते लोक प्रगासे, तिन्ना लोकां दे विच चमक रहा है।
लोग क्योंकि ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਗੀ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਮੈਨੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਭਟਤ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਰਸ ਤੇ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਮੈਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਭਟਤ ਭਟਕ ਪ੍ਰਮ ਭਜਤ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਭਰਮ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਟਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਪੂਰਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਹੈਗਾ। ਭਟਕ ਕੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਟਕ ਭ੍ਰਮ ਭਜਤ, ਦੁੱਖ ਪਰਹਰ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਖੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰਹਰ ਮੈਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਡਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਆ ਗਈ। ਪਰਹਰ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪੂਰਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਪਰਹਰ ਮੈਨੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਗਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਲੁਪਤ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੈਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁਖ ਵਿਗਾਸੇ, ਵਿਗਾਸੇ ਮੈਨੇ ਖੇੜੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਿਤ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਵਚਨ ਸੇਵਕ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਸਿੱਖ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਿਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਭਿਤ ਮੈਨੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਅਤ ਲੁਭਿਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਭੀ ਮੈਨੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਅਲ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕੁਸਮ ਸੁਵਾਸੇ, ਏਦਾਂ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਲ, ਅਲ ਮੈਨੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਉਂ ਕੁਸਮ ਸੁਵਾਸੇ। ਕੁਸਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਕੁਸਮ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਫੁੱਲ। ਸੁਵਾਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਹਿਤ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਲ ਮੈਨੇ ਭਵਰਾ, ਅਲ ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਭਿਤ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਥਪਿਓ ਥਿਰ। ਥਪਿਓ ਮੈਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਥਿਰ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਔਂਕੜ, ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੇਚਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥਿਰ ਥਪਿਓ ਭਾਵ ਨੇਚਲ ਟਿਕਾਣਾ। ਥਪਿਓ ਥਿਰ, ਨੇਚਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਪਿਓ ਥਿਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟੋਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਚੋ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਖਤ ਮੈਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਖਤ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਖਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
पर गुरु नानक दा तख्त ऐसा है, जिस दिन तो गुरु नानक दा तख्त आरंभ होया अज तक गुरु नानक दा तख्त अडोल है। इस करके उन्होंने कह दिता साचो तख्त। सच्चा तख्त जिहड़ा है गुरु रामदास है, वो गुरु रामदास पातशाह जी दा सच्चा तख्त नेचल टिका दिता सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने। भाव गुरु अमरदास पातशाह जी नूं आप कृपा करके गुरु रामदास पातशाह जी के उपर गुरु अमरदास पातशाह जी ने आप कृपा करके गुरु रामदास पातशाह जी का सच्चा तख्त नेचल तख्त टिका दिता। भाव अपने तख्त का मालिक बना दिता। जिस गुरु नानक के तख्त ते गुरु अमरदास पातशाह जी विराजमान सन, उस तख्त का वारिस जिहड़ा है सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी नूं बना दिता, आप अपने वर्गा कर दिता। गुरु रामदास पातशाह जदों अजे भाई जेठा जी के रूप में सन, उदों गोइंदवाल साहब विखे बौली साहब की सेवा भी चल रही सी, गोइंदवाल साहब अस्थान की भी सेवा चल रही सी, ते शहर की भी उसारी चल रही सी। ते गोइंदवाल साहब अस्थान की बौली साहब की सेवा के लिए भाई जेठा जी सवेर तो लैके शाम तक इन्नी सेवा करते सन कि शाम तक उन्होंने संगतां का भी ध्यान रखना, मिस्त्रियों को इट्टा गारा चाहिए वह भी आप उन्होंने गारे की टोकरी ढोनी, आप उन्होंने इट्टा ढोनिया। शाम होनी जो उसारी का काम रुक जाना, संगतां ने घरों घरी चले जाना, राज मिस्त्रियों ने घरों घरी चले जाना, ते भाई जेठा जी ने खिलरियां इट्टां कट्ठे करते फिरना। कदी उन्होंने चूना गारा कट्ठे करते फिरना, इस्त्रियों के औजार पे होने वो चुक के रख देने, कई तसले इकट्ठे कर देने, लंगर हार के जिहड़े भांडे सन उन्हां भांडियां नूं मांज धो के रख देना, तप्पड़ झाड़ के विछा देने, बड़े बड़े देगचे मांज के धो के रख देने। रोज का एक नेम सी भाई जेठा जी का। जदों उसारी का काम शाम नूं रुक जांदा सी, दीवान की समाप्ति तो बाद राज मिस्त्री संगतां घरे चलियां जांदियां सन, जो खलारा पिया हुंदा सी उस खलारे नूं भाई जेठा जी सामभदे हुंदे सन। रोज की तरह अज भी जो समान संभालदे काफी रात हो गई, गुरु अमरदास पातशाह बाहर आए, उन्होंने देखा भाई जेठा ते समान सामभदा फिरदा है। जूठे भांडे धो के रख दिते, कौलियां गिलास प्लेटां जो उस जमाने के बर्तन सन धो के रख दिते, देगचे धो के रख दिते, फर्श साफ किया, तप्पड़ झाड़ के विछा दिते, इट्टां कट्ठियां कर दित्तियां, कई तसले इकट्ठे कर दिते। जो सारा समान सामभ दिता, गुरु अमरदास पातशाह ने दूरों देखिया, आवाज दी, जेठिया इत्थे की कर रहे हैं इन्नी रात नूं, इन्नी रात इत्थे की कर रहे हैं? ते भाई जेठा जी आखदे ने सतगुरु समान खिलरिया सी, वो सामभदा फिरदा सां, कल नूं फिर इट्टां दी लोड़ पेगी, सोचा इट्टां गवाच ना जाण, इकट्ठियां करके रख दियां, घर दे भांडे ना गवाच जाण, मैं भांडे धो मांज के साफ करके थां सिर टिका के रख दिते ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे राज मिस्त्री कित्थे ने? कहण लगे उत्ते घरां नूं चले गए। सतगुरु कहण लगे संगत कित्थे आ? कहण लगे जित घरां नूं चली गई। गुरु अमरदास पातशाह कहण लगे जेठिया जी वो सारे घरां नूं चले गए, तू अपने घर जाके आराम क्यों नहीं करता? तू इत्थे समान क्यों इकट्ठा करदा फिरदा? जे मिस्त्रियों ने अपने औजार नहीं सांभे, संगतां ने इट्टां कई तसले नहीं इकट्ठे कीते, उन्हां भांडे नहीं सांभे, तू क्यों सारा कुछ करदा फिरदा? तू भी जाके अपने घर आराम कर। ते भाई जेठा आखदे ने सतगुरु मेरा घर ते तेरा दर है ना, इहनूं छड्ड के कित्थे जावां? ते मैं इस घर दा इक मैंबर हाँ, इस घर विच रहना, इस करके इस घर दा इक मैंबर हाँ। सतगुरु पातशाह कहने लगे जी संगतां ने मिस्त्रियों ने समान नहीं सांभिया, तू क्यों सांभदा फिरदे? तू भी छड्ड दे। ते भाई जेठा कहने लगे सतगुरु जो घर च कोई काम खोलिया होवे ना, ते आंढ गुआंढ रिश्तेदार लोक मित्र आके मदद करांदे ने, शाम नूं जो काम मुक जांदा है लोग घरां नूं चले जांदे ने, जिहड़ा खलारा बचदा है ना वो घर दे मैंबरां नूं इकट्ठा करना पैंदा है, वो नहीं गवांढी इकट्ठा करदे। जिहड़ा बाद विच काम तो बाद खलारा बचदा है ना वो फिर रिश्तेदार नहीं सांभदे, वो आपां नूं परिवार दे मैंबरां नूं सामभना पैंदा है। सतगुरु संगतां ने सेवा कीती, राज मिस्त्रियों ने काम कीता, काम तो बाद वो सारे घरां नूं चले गए, आ जिहड़ा खलारा पिया ना एक घर दे मैंबरां दा फर्ज बनदा है सामना, इस घर दा मैं मैंबर हाँ, इस करके मैं सारे समान इकट्ठा करदा फिरदा कि मेरे घर दे भांडे ना गवाच जाण, मेरे घर दीयां इट्टां ना गवाच जाण, कई तसले ना गवाच जाण, मैं सारा कुछ इकट्ठा करके रख रहा। गुरु अमरदास पातशाह कहने लगे जेठिया तू अपने आप नूं इस घर दा मैंबर समझदा है?
कहने लगा हाँ सतगुरु एक छोटा जिहा अदना जिहा मैंबर समझदा वा। सतगुरु पातशाह कहने लगे जी ये गल है फिर अज तो बाद तू इस घर का मैंबर नहीं। भाई जेठा जी कहने लगे सतगुरु मैंबर नहीं फिर इस घर च मेरी की हैसियत है। गुरु अमरदास पातशाह नेड़े आए कुट के गलवकड़ी विच लिया भाई जेठे नूं, जेठिया जे तू घर का मैंबर बन के इन्नी वधिया घर की संभाल कर रहे हैं ते जे तेनू घर का मालक ही बना दईए फिर किन्नी वधिया संभाल करेगा। जिहड़ा घर का एक छोटा जिहा मैंबर बन के अपने घर का इन्ना ध्यान रख रहा है जे वो घर का मुखी हो जाए फिर किन्ना को ध्यान रखेगा। आ जेठिया तेनू इस घर का मालक बना दिया, इस घर का मुखी तेनू बना दिया, इस घर दी चाबियां तेरे हाथ फड़ा दिया तो इस घर की होर वधिया तरीके नाल संभाल करेगा। अपने घर का मुखी बनाने का मतलब सी अपने तखत ते बिठा दिता भाई जेठे नूं ते गुरु रामदास पातशाह कर दिता कि हुण इस घर का तू मालक है, मुखी है। तख्त बह तख्त की लायक, जे तख्त लायक हुई तो इस तख्त का लायक है। अज तो बाद इस घर का मुखी तू है। अपनी थां ते गुरु रामदास पातशाह जी नूं सिंघासन ते सुशोभित कर दिता। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि आम तौर ते असीं रोजाना ते संगत विच जाण वाले बहुत थोड़े हुंदे ने, ऐतवार नूं बहुत संगतां इकट्ठियां हुंदियां ने ते कुछ लोग ऐसे भी सज्जण ने जिहड़े ऐतवार अपने बच्चों को गुरुद्वारे च लैके आउंदे ने। इस करके नहीं कि कुछ सिख जाणगे, छुट्टी है चलो बच्चे घूम फिर लैणगे, पिकनिक हो जाएगी, थोड़ा खेड लैणगे, असीं लंगर छक लवांगे, उत्थे खीर पूड़िया बदाम कड़ाह बनते ने ऐतवार नूं। इदां आंदे ने जिवें मानो छुट्टी कट्टण आए ने। नहीं जदों भी आओ जां बच्चों नूं लैके आओ इस तरह ना लैके आओ कि अज छुट्टी का दिन है चलो घूम लैणगे बच्चे, पिकनिक मना लैणगे, खुश हो जाणगे। नहीं इस तरह लैके आओ कि आओ तुहानूं तुहाडे घर लैके चलीए, ये तुहाडे बजुर्गां दा घर है, ये गुरु नानक दा घर, तुहाडे वड्डे वडेरियां दा घर है, ये तुहाडा पिता पुरखी घर है। ते जदों बच्चों नूं ये कह के लैके आओगे ये तुहाडे पिता पुरखी जदाद तुहाडे वड्डे वडेरियां दा घर है, फिर उन्होंने अपने घर विच बैठण दी जाच आ जाएगी। फिर दरबार हाल च दौड़ते नहीं फिरनगे, हो बैठण दी जाच आ जाएगी। उन्होंने पता आएगा असीं अपने घर के भांडे किवें सामने ने, वो भांडे मांज के साफ करके सेवा करनगे, वो अपने घर के तप्पड़ झाड़ के विछाणगे, अपने घर की सफाई करनगे। फिर आउंदे भविख दे विच सानू कौम के भविख की चिंता करने की लोड़ नहीं पेगी। इन्हां ही बच्चों ने फिर वड्डे होके किसी ने प्रधान बनना है, किसी ने सैकटरी, किसी ने खजांची, किसी ने ग्रंथी, किसी ने कीर्तनी, किसी ने सेवादार बनने। ते जो प्रबंधकी ढांचे च आ जाणगे उन्होंने पता होएगा एक गोलक साडे घर दी है, जद्दी पुरखी है। इस गोलक की माया के नाल लोड़ वाले कारज होणगे, लड़ाइयां झगड़े करके वकीलों की जेब च पैसा नहीं जाएगा, फालतू फजूल खर्ची नहीं होएगी। गुरु नानक दे सिख दी खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा जिहड़ा गोलक विच आया ये साडे वड्डे वड्डे बजुर्गों का खजाना है, प्रॉपर्टी है। और इस माया दे नाल सिक्खी प्रचार लई कारज ते हो सकते हैं पर लड़ाइयां झगड़े करके वकीलों दी जेबां च पैसे नहीं जा सकते। फिर आउंदे भविख च उन्होंने अपने घर की माया भी खर्चण का पता लग जाएगा। सचमुच जदों कोई अपने आप को गुरु नानक के घर का मैंबर समझण लग जाता है, गुरु नानक के घर की सेवा संभाल करन दी भी जांच आ जाती है। भाई जेठा जी मैंबर बने सन, गुरु अमरदास पातशाह जी ने उन्होंने मालिक बना दिता। विद्यमान दद्दे दे पैर च अद्धा यैया है, जिस अखर के पैर च अद्धा यैया होवे उहदा उचारण करना होवे उस अखर नूं सिहारी ला के अगे ऐड़ा लगा दिता जाता है, अद्धे यैये का उचारण हो जाता है। विद्यमान गुरु आप थप्यो थिल, साचो तखत गुरु रामदास है। गुरु अमरदास पातशाह प्रतख सतगुरु जी ने आप गुरु रामदास पातशाह जी नूं सच्चे तखत के उपर नेचल टिका दिता। तारियो संसार माया मद मोहित, एक दो मिनट दे विच आपां सतवें सवेद दी विचार भी कर लईए। तारियो संसार, संसार के रारे नूं औकड़ लग गई, संसार तार दिता। माया मद मोहित, वो संसार जिहदे विच माया दे मद विच, मद मैंने नशा, मोहित मोए होए सन। वो लोग जिहड़े माया दे मद विच मोए होए सन उस संसार नूं तार दिता। किवें तारिया? अमृत नाम दियो समर्थ, समर्था वाला नाम अमृत जिहड़ा है वो बख्श दिता। इत्थे अमृत दे भी धरती नूं औंकड़ आनी चाहिए है व्याकरण नियमां दे मुताबक।
आत्मक जिंदगी देने वाला नाम जल दियो समर्थ, वो नाम अमृत जिहड़ा समर्थ है। कई थावां दे उपर समर्थ ते थत्थे नूं औंकड़ नहीं है, सिहारी है, भाव समर्थ सतगुरु ने नाम अमृत दे दिता। पर इत्थे औंकड़ है, इस करके प्रिंटेड बीड़ां दे विच इहदा असीं अर्थ इदां कर सकदे हां, समर्थ अमृत जिहड़ा सारा कुछ करन दी समर्था रखदा है, समर्था वाला अमृत नाम अमृत बख्श दिता। प्रिंटेड हथ लिखत बीड़ां दे विच समर्थ दे थत्थे नूं सिहारी भी मिलदी है। समर्थ सतगुरु ने आत्मक जीवन रूपी नाम जिहड़ा है वो बख्श दिता। फुन मैंने फिर कीर्तवंत सदा सुख संपत, कीर्तवंत जिहड़ा आदरवाची शब्द होने करके तत्ता मुक्त आया है। कीर्तवंत भाव शोभा दे मालिक, सदा सुख संपत जिहड़े सदा ही सुखां दे संपत्ति दे मालिक हन। सुख बहुवचन ने, सुखां दे मालिक, संपत तत्ता अपनी मौलिक सियारी नाल लेके आए। इस संपत्ति शब्द तो संपत बनया है, इस करके स्त्रीलिंग शब्द अपनी मौलिक सियारी नाल लेके आया। कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध ना छोड़े सत। रिद ते सिद्ध भी स्त्रीलिंग शब्द अपनी मौलिक सियारी नाल लेके आए हैं। अर मैंने अते ना छोड़े, इथे छोड़े पाठ करना है, छोड़े नहीं, छोड़े ड ते ए, ना छोड़े सत, सत थत्थे नूं आ गई औंकड़, एक वचन पुलिंग बन गया साथ। रिद्धी ते सिद्धि आप जी दा साथ नहीं छड़दी, दान बड़ो अतवंत महाबल, दान दे देने नूं आ गई सियारी, मैंने दानी बड़ो वड्डे दानी हन। सचमुच गुरु जी दा दान दिंदा है, जी दान दे भगती लैन। गुरु का काम ही जीवां नूं ज्ञान दा दान देना, इस करके गुरु बहुत वड्डा दानी है। अतवंत मैंने अत्यंत, महाबल, महाबल मैंने ताकतवर, महाबली, महाबली होने करके लल्ले नूं इत्थे सियारी लग गई। अतवंत विशेषण जिहड़ा तत्ते नूं औंकड़ नाल अत्यंत, महाबल सेवक दास कहियो ए तत्। सेवक स्त्रीलिंग शब्द जदों भी आएगा कक्के नूं सियारी नाल आएगा, ते इत्थे दास ते सस्से नूं आ गई सियारी, मैंने दास ने, ते ओदा विशेषण सेवक भी कक्के नूं सियारी नाल आ गया, सेवक ने, दास सेवक ने। आम तौर ते सेवक स्त्रीलिंग वास्ते शब्द आउंदा है, पर इत्थे दास का विशेषण होने करके कक्के नूं सियारी आ गई। दास ने, सेवक ने, सेवक दास कहियो ए तथ। सेवक दास ने भाव दास सेवक मथुरा ने ये तथ कह दिता। तथ के थत्थे नूं आ गई औंकड़, मैंने तथ फैक्ट सच्चाई, ओदा विशेषण यही भी पुलिंग का विशेषण होने करके औंकड़ सहित आ गया। भाव दास सेवक मथुरा ने ये सच आख्या है। की सच आख्या है? ताहे कहां प्रवाह कहूं की, ताहे मैंने उस मनुख नूं कहां प्रवाह, कादी प्रवाह, प्रवाह स्त्रीलिंग शब्द होने करके हाहा मुक्ता आया है। प्रवाह हुंदा नहीं, प्रवाह हुंदी। ताहे कहां प्रवाह कहूं की, मैंने उस मनुख नूं किसे दी की प्रवाह, जाके बसीस धरियो गुर हथ। जाके मैंने जिस मनुख दे बसीस, सस्सी नूं आ गई सियारी, मैंने सीस ते उत्ते धरियो गुर, रारे नूं आ गई सियारी, गुरु ने, हथ एक वचन पुलिंग शब्द होने करके थत्था औंकड़ सहित आ गया। जाके बसीस धरियो गुर हथ, भाव उस मनुख नूं किसे दी कादी प्रवाह जिहदे सिर ते गुरु रामदास पातशाह जी ने हथ धरिया है। ते जदों गुरु हथ रखदा है, जन्मां जन्मांतरां दे ऋण करजे उतर जांदे ने, नाम दा रतन हिरदे च प्रगट हो जाता है। फिर ओदा जीवन जिहड़ा सुखमई शांतमई हो जाता है। मेरा हीरे रतन नाम हर बसिया, गुरु हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुरु नाम दियो ऋण नाथा। सतगुरु कृपा करन भट्ट मथुरा जी दे इन्हां समयां दे विच जो उपदेश मिले है, इस साडे जीवन दे विच समा जाए। असीं भी गुरु रामदास पातशाह जी दे पाए गुरबाणी दे पूर्णियां ते चल के मनुखा जीवन नूं सफल कर सकीए। इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। विचारां करदियां होईयां बेअंत भुल्लां खिमा करनियां जी। मिल के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है वीर अमृतपाल सिंह जी, आप जी ने भट्ट मथुरा जी के सुइयां के विचार की संपूर्णता की है। मैं बेनती करदा हाँ
ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਕਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ हैंड रेज करके अपनी गल कर सकते।